the deepest ocean of math. Before starting our math parliament, what we have to do, you know very well. Yes, you get started with loud clapping. Okay? So, on what topics today's parliament is focused? The topics on which today's parliament is focused is written on the board. So these topics or this point is going to be discussed with you. And what's that point? गिनतारा का उपयोग कर दो या दो से अधिक अंकीय संख्याओं के बीच योग और घटाव की संक्रिया करना। कल हमने जाना कि एक अंकीय संख्याओं के बीच योग की क्रिया अबैकस पर कैसे करते हैं, और आज हम जानेंगे इस अबैकस पर दो या दो से अधिक अंकीय संख्याओं के बीच योग और घटाव की संक्रिया कैसे करेंगे। हाउ वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ टू और मोर डिजिट ऑन अबैकस, or using abacus. Yes. So we have become a little bit expert. So before starting our parliament, we recall some important point which is in your mind or not for operating these tools for calculating the number or displaying the number. You know very well in each rod there are only 9 bits. Here there are only 9 bits in each rods. There are only 9 bits and you can slide the bits along the rod. Okay? And we know that the numbers from 0 to 9, there are different symbols for numbers from 0 to 9. But there is no different symbol other than these symbols for the number 10 or more than the number 10. If we represent the number 10 or more than the number 10, we have to use all these 3 digits, 10 digits. By using these 10 digits, we can represent the number 10 or more than 10. So, first, you should recall that there are only 9 tens, but when one 10 is added to here, there will be 10 bits. There will be 10 bits. But there is no digit for 10 bits. So when we get 10 bits, we make 110. A group of 10 ones is called, a group of 110 is called 110. You should keep this point in your mind. 10 ones, a group of 10 ones is called 110. Just as you get 10, you make a new group which is of 10. So a group of 10 ones is called, what we call it, a group of 10. A group of 10 ones is called 110. So you can write down 110 has
How many ones? 10 ones. Okay. In the same way, a group of 10 tens, a group of 10 tens is called, what we call a group of 10 tens? 100. 100. इसी प्रकार a group of 10 100 is called 1000. 10, a group of 1000 means what? 1000 means 10 hundreds. How many hundreds makes 1000? How many hundreds? कितने hundreds से 1000 बनाते हैं? तो वही बोलो 1000 बन क्या हो गया? 10 hundreds. ये सब बात तुम जानते हो. अब जेमी, when you obtained the number more than 10, you make a new group, right? A new group will be the size of new group will be 10 ones. So here one green bead is equal to 10 blue bead. Okay, just as one yellow bead is equal to 10 green bead. Okay, when you get, आप जब इस संख्याओं को जोड़ते हो, इस स्थान के अंकों को जोड़ोगे, यहाँ पर 9 होगा तो ठीक है, 9 बीट से काम चला लेंगे. लेकिन जस्ट एज यू गेट द नंबर मोर देन 9, तो आपको क्या करना पड़ता है? यू मेक ए न्यू ग्रुप बिगर देन इट, जस्ट बिगर देन इट. यहाँ पर भी अगर आप 9 से बड़ा 10 100 प्राप्त करते हो तो क्या करना होता है? व्हेन यू गेट 10 100, व्हाट यू डू? यू मेक ए न्यू ग्रुप and which is called 1000. And for 10 yellow bead, how many this orange bead? How many orange bead you will use for 10 yellow beads? 1. These 10 yellow beads make 1 orange bead. These 10 orange beads makes 1 red bead. These 10 blue beads makes 1 green bead. Because this 1 green beads, the value of 1 green beads is equal to the value of 10 blue beads. So you can say the value of 1 beads, green beads contain the value of 10 blue beads. In the same way, value of 1 yellow beads contain the value of 10 green beads. In the same way, the value of 1 orange beads contain the value of 10 yellow beads. Okay? So when you need to make a new group of every size, when you need to make a new group, when you get the number 10 or more than 10 at any places, then you need to make a new group. Okay? If you have 9 ones or less than 9 ones, in this case you need not to make a new group. But when you add up blue beads and you get more than 10, here are only 9 beads, but when you get 10 blue beads, then you need to make a new group, and for 10 beads you will take 1 green beads. Okay, this is the rule which you have to follow while counting, while adding, subtracting or doing any kind of mathematical operations. Okay, so you tell me how many blue beads is equal to 1 green bead. How many blue beads? The value of how many blue beads is equal to 1 green bead? 10. How many green beads? How many green beads contain the value of 1 yellow bead? 10. How many yellow beads contain the value of 1 orange bead? 10. Okay? And this is the unit place. This is 10 place. This is 100 place. This is 1000 place. And this is 10,000. Okay? You understood? Yes. Very fine. So,
whenever you add the digit at any places and you get the value 10 or more than 10, in this case you need to make a just bigger group, right? And इससे बड़ा समूह क्या है? इससे जो बड़ा समूह है जस्ट इसके बगल में, इससे बड़ा समूह इसके जस्ट इसके बगल में। अब समझ गए ना? बस इन्हीं बातों को आप अपने दिमाग में रखो और फिर काम बहुत ही आसान है ना। जो मैं बताया उसको सिर्फ दिमाग में रखो। प्लीज पुट ऑल दीज which I have taught you, then your work become very easy. Okay? So what we are going to learn today? We are going to learn today how can we add up the numbers of 2 digits or more than 2 digits. अर्थात 2 अंकीय संख्या या दो से अधिक अंकों वाला संख्याओं के बीच योग का क्रिया कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए जैसे मैं एक उदाहरण मिटा दूं तो मुझे फिर से बोल दो, कितने इकाइयां मिलकर के एक दहाइयां बनते हैं? ठीक है, खड़ा होकर बोलो, इधर आओ। कितने इकाइयां मिलकर के एक दहाइयां बनते हैं? 10 इकाई। कितने दहाई मिलकर के एक सैकड़ा बन जाते हैं? 10 दहाई। कितने सैकड़ा मिलकर के 1000 बन जाते हैं? कितने सैकड़ा मिलकर के 1000 बनते हैं? 100 सैकड़ा। 100 सैकड़ा। सही है, तो सही क्या होगा बताओ? 10 सैकड़ा। यस। और कितने सैकड़ा, कितने हजार मिलकर के एक 10,000 बन जाते हैं? 10। तो आपको अंग्रेजी में ऐसे बोलना है, ए ग्रुप ऑफ 10 ones is called 110, a group of 10 tens is called 100, and a group of 10 hundred is called 1000, and in the same way a group of 10,000 is called 1/10,000. Okay? when you need to make a bigger group, कब आपको बड़ा समूह बनाने की आवश्यकता होती है? जब when we get the value 10 or more than 10, in this case we need to make a bigger group. क्यों? क्योंकि we have no different digit for showing the number 10 or more than 10. Okay? I have no digit. I have digit to represent 0. I have digit to represent 1. I have different digit for different number 3. I have different digit for representing different number 5. And I have different digit for representing different number 9. So from 0 to 9, all numbers are different, and the digits which are used to represent them are also different. But 10 or more than 10, when we represent the number using the digit 10 or more than 10, we are not allowed to use different digit. We use these digits also to represent number 10 or more than 10. Okay? So what we are going to learn? We are going to learn how can we add up the digit, the numbers of 2 digit or more than 2 digit. Okay. पहले देखिए, जैसे मैं एक संख्या देता हूं 26, 27, 23। आपको क्लास में यह बताया गया है और अभी तक आप यही जानते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़ना या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। और यह जोड़ने का काम कहां से शुरू करते हैं? किन स्थानों से? इकाई स्थानों से। यस, यू आर टॉट to add 2 or more numbers means to add their digit sitting at the same place. While adding their digit sitting at the same place, when we get the value 10 or more than 10, in this case we need to make a just bigger group. Okay?
इन्हें करते हैं जी। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस एबेकस पर नए तरीके से सीखेंगे। हम इकाई स्थान से जोड़ नहीं शुरू करेंगे, हम दहाई से जोड़ शुरू करेंगे। हम पता करेंगे, वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल टेंस दिस न्यू फिगर ग्रुप हैज, हाउ मेनी वंस दिस फिगर ग्रुप हैज। ओके, तो दिस ग्रुप हैज 2 टेंस, दिस ग्रुप हैज 2 टेंस, दिस ग्रुप हैज 2 टेंस। So how many total tens we have? How many total tens you have? How many tens you have? If you add these 3 groups, then how many tens you have? No tens. I am asking about only tens, the group of 10 ones. How many the group of 10 ones in these 3 groups? कितना होगा? इन तीनों समूहों में दहाइयां का कितना समूह है? 6। तो 6 को दहाई बना, तो यहाँ पर कितना बना? 6 दहाई। 6 दहाई का मतलब क्या हो गया? 7। हम इधर जोड़ रहे हैं। अब हम लोग वंश को जोड़े। कितने वंश है? 7, 6, 13 और 3 कितना हो गया? 16। लेकिन 16 वंश जब हो गया तो 10 या 10 से जो भी बड़ा होता है, हमें बड़ा समूह बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास तो अंश तो सीमित है। तो हम लोग 16 वन में कितने 10? 110। और 110 मतलब कितना हुआ? 10 और 7 वन, 7 10 70 कितना हो गया? 77। कितना था? अरे 7 10 हुआ ना? 7 6 13 3 16 ना हुआ? तो 16 10 माने 110 और 6 1। ध्यान देखेंगे यहाँ पर कितना है बोलो? सब मिला कितना हो गया? सब जब तीनों को ऐड किए तो कितना टेंस हो गया? 6 टेंस हो गया। 6 टेंस हो गया ना? और प्लस वंस कितना हुआ? 7 3 10, 16 वंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो 6 टेंस है, 9 से कम है, तो हम 6 इस बीट का यूज करेंगे। लेकिन 16 वंस है, यहाँ पर वंस के जगह 9 ही बीट है, तो आप तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि 16 वंश में कितने 10 बनेंगे? क्या 10 बनेंगे? 110। इसलिए 6 टेंस और 16 वन में 1 टेंस और 6 वंश हो गए ना? अब यहाँ 6 वंश और सॉरी 6 टेंस और 110 कितना हो गए? 7 टेंस हो गए। और प्लस कितना हो गए? 6 वंश। अब देखो सभी स्थानों पर जो संख्या मिला, 6 वंश मिला, 7 टेंस मिला, यह जो नंबर है प्रत्येक पद में अब क्या हो गया? 9 या 9 से छोटा हो गया। इसलिए यह कौन सी संख्या होगा? 7 टेंस और 6 वंश कौन संख्या होते हैं? 76। क्या? वंश। आप समझ गए ना? अब कैसे जोड़ना है देखो जरा। आप समझ गए? अब मैं कोई संख्या दे रहा हूं, बड़ा बड़ा संख्या दूंगा। जैसे 90 में 67 मिलाओ और 62 मिलाओ। ध्यान देना। देखो यह तो यूनिट प्लेस है, यह 10 प्लेस है, यह 100 प्लेस है। हम सीधा जोड़ेंगे। इसमें 9 टेंस और कितने वंश है? मैंने यहाँ पर 9 को समूह है 10 का बना हुआ और 8 को समूह है 1 का। तो 9 टेंस 6 टेंस कितने हो गए? अब देखो 8 10 का 9 10 6 10 कितने हो गए? मतलब 0 0 पोजीशन बनाएंगे। चलो हम सीधे जोड़ेंगे। टेंस को इधर से हम जोड़ेंगे ना। 9 टेंस 6 10 कितने हो गए? 15 10 और 6 10 कितने हो गए? तो आपका 10 प्लेस तो आपके लिए तो ये हो जाएगा ना। कैसे करूं? इसको इधर करना होगा ना। आपके लिए 10 प्लेस तो यह है। अब यहाँ पर 9 बीट है, लेकिन यहाँ पर 10 प्लेस पर हम जोड़ते हैं डिजिट को, अंकों को, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? कितने 10 हो गए? 21 10। अब 21 हो गए, 6 6 12 12 8 20 और 21 10 हो गए। अब 21 10 के लिए चूंकि 9 10 तक ही हमारे पास ना बीट है, तो 21 10 हो गया तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू मेक ए बिगर ग्रुप। 10 से बड़ा बिगर ग्रुप कौन होता है? 100 का।
राइट। तो अब मुझे बताइए इनका टेंस जोड़े तो कितने 10 हो गए? 21 10। तो 21 10 में कितने 100 बनेंगे? 200। चलिए 200 ले लिए और कितने 1 हो गया ना। अब देखिए अब फिर क्या जोड़ना है? 1 को क्या जोड़ना है अब 1 को? तो 7 1 8 1 कितने हो गए? 15 और 15 2 कितने हो गए? 17 1। 17 1 के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, फिर रीग्रुपिंग करना होगा। तो 17 1 में क्या होता है? 1 10 और 7 1। तो 1 10 यहाँ से ले लिए और देखो यहाँ से 7 1 ले लिए। अब इस संख्या को जोड़े तो यहाँ पर कौन सी संख्या को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ? 227। अब जरा हम जो सीखे हैं क्लासरूम में प्रारंभिक दौर में जो हमारे टीचर ने सिखाया उसके आधार पर 7 8 15 2 17 इकाई। 17 इकाई मतलब क्या होगा? 17 वंस के मतलब हो गया 1 10 और 1 10 और 7। अब 7 वंस हो गया, 9 से छोटा है 7 यहाँ पर ले लिए और यहाँ तो पहले ही से 10 हमारे पास ही था और यहाँ से जो 1 10 प्राप्त हुआ। अब क्या 10 हो गया? 9 1 10 10 16 10 और 6 कितने हो गए? 22 10। समझे ना? चलिए फिर मैं एक संख्या लिखता हूँ, फिर बड़ा बड़ा संख्या लिखता हूँ। बोलो 65 प्लस 72 प्लस क्या हुआ? 65 प्लस 72 प्लस कोई ले लो 62 प्लस क्या हो गया? तीन ही संख्या कर लो। चलो पहले हम लोग टोटल 10 पता करेंगे। तीनों समूहों को आपस में लाएंगे तो समूह 10 10 के रूप में लगा हुआ है। तो टोटल कितने 10 हुए? बोलो 19 10 है तो हमें ग्रुपिंग करने की आवश्यकता होगी ना। 19 10 में 10 से बड़ा कौन ग्रुप होता है? तो बताओ 19 10 में कितने 100 और कितने 10? 100 हुआ ना और 9 10 चलिए ना। अब चलो 1 को जोड़ो कितना हो गया? 5 तो 100 तो 9 तो यहाँ पर है 1 प्लेस 9 1 हो गया ना। अब ये कौन सी संख्या लिखा हुआ है? 199। 199। अब देखो 5 2 7 2 9 6 6 12 7 नहीं ठीक है ना? अब समझ गया ना? कितना लिखा हुआ बोलो? 72 72 में लिखा हुआ 7 10 2 1। यहाँ से 7 10 हुआ ना, तो यहाँ पर 9 है तो हम 7 ले लिए। ये क्या है? 7 10 है और 2 1 क्या जोड़ना है बोलो? वगैरह से 72 बोलो कितना जोड़ना है? 35 यहाँ जोड़ेंगे हम लोग। 3 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 10 है तो 10 क्या हो जाएगा? 10 10 हो जाएगा। तो 10 10 मतलब क्या हुआ? 100 0 1 हो गया ना। अब फिर क्या जोड़ना है? 5 और 2 7 1। तो यहाँ पर 2 1 पहले सही था और यहाँ पर 3 और 2 ही 1 है ना। 2 1 और 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। ये कौन संख्या हो गया? 135। चलो फिर बोलो ध्यान देखो। साथ जोड़ दिए ना, फिर बोलो 44। अब 44 में क्या 4 10 है? 10 की जगह 0 है कि नहीं है? तो पहले हम 10 जोड़ेंगे तो 4 10 1 10 2 10 3 10 4 10 फिर 4 1। यहाँ पर 1 की जगह कितना है बोलो? 7 है ना। 4 1 अगर लेते हैं तो 11 1 हो जाएगा। 11 1 का मतलब क्या हो गया? 1 10 and 1 1 and what this number is? What this is? कितना है बोलो? अब देखो जरा 5 2 7 4 11 हुआ ना। 7 3 10 4 14 1 15 141 है। 151 है ना। देखो जरा 100 5 10 and 1 1 कितना हो गया? 151 है ना।
अब देखो 7 3 10 4 14 1 15 करेक्ट है कि करेक्ट है? समझा कि नहीं समझा? कौन समझा इसको? चलो आओ। नहीं समझा? 10 को 10 के साथ जोड़ो। वहां 10 अगर 9 से बड़ा होता है 100 को 100 के साथ जोड़ो और सबको पता करो कि वहां पर 9 से बड़ा हो गया तो फिर रिग्रुपिंग करेंगे। चलो लिखो तुम उधर पर देखना, खाली ये बात देखना कि वहां कितना 10 ये जो लिखा हो कितना 10 जोड़ना है, कितना बोलो बोलो 77 9 ही है, 2 छोड़ के साथ निकाल लो, एक बार स्लाइड करो और दिखाओ ऐसे कैमरा के सामने, ऐसे दिखाओ वहां। चलो 77 प्लस 38 और प्लस से चिन्ह लगाओ साइड में 38 मतलब 3 10 जोड़ोगे 10 है वहां पर 3 मिलाओ तो कितने हो जाएगा उसको करो फिर तो 10 10 हो जाएगा तो मतलब वहां चलो और फिर यूनिट जोड़ो। चलो कौन सा नंबर तुम बोलो? 115। चलो 115 उधर लिखो 115। चलो इसको जोड़ो कितना हुआ 7 8 15 7 3 10 1 11 करेक्ट। चलो अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? चलो आओ चलो लड़का लिखो। जब संख्याओं को जोड़ रहे हो तो समान समान समूहों को आपस में जोड़ो। वहां पर याद होना चाहिए कि हम किसको किसको जोड़ लिए हैं। हायर से स्टार्ट करो या लोअर से स्टार्ट करो ताकि आपके दिमाग में रहे ना। चलो लिखो 75 बोलो बोलो 75 प्लस 25 अब 25 से 2 10 को जोड़ो फिर 5 1 को जोड़ो। वहां पर अगर 9 से बड़ा होता है तो फिर बड़ा ग्रुप बनाओ। कितना हुआ? दूसरा बच्चा जाओ जी। हो गया? दूसरा बच्चा कितना हुआ? नहीं हो पाया उसको। 109 कैसे हुआ? देखो ध्यान वाला कौन सा संख्या है? 75 में क्या 7 टेंस है तो 10 तो यहाँ 10 प्लेस का आप 7 बीट लेंगे क्योंकि 9 बीट यहाँ पर ही है तो 2 कम कर सीधे स्लाइड करेंगे ना। और कितने वंस हैं? 5 वंस है। 1 वंस 2 वंस 3 वंस 4 वंस 5 वंस होगा ना। इसको जीरो निकलते हैं। अब कितना जोड़ना बोलो? 25। तो पहले 2 टेंस जोड़ना है। यहाँ 2 टेंस जोड़ दिए या 5 1 है और पीछे 5 1 है ना तो 10 1 हो जाएगा। 10 1 के कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर 0 1 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? 0 1 होगा। ये ज्यादा दे दिया ना यहाँ पर गलती हो गया। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। 0 1 और कितना हो जाएगा? 110 और 110 आ गया तो यहाँ 9 10 नहीं है फिर 110 जीरो जेमी यहाँ पर 1 10 है तो 9 10 हो गया। Yes, sir. 9 10 तो फिर 1 10 10 10 हो गया। Yes, sir. जेमी 10 10 हो गया तो फिर यहाँ ग्रुप बनाने की आवश्यकता है तो 0 10 100। यस 100 लेकिन यहाँ तो 90 हो रहा है ना। गलत कहाँ की है देखो जरा। नहीं 90 नहीं। ठीक है सर 100। हाँ 100 ठीक है ना। यस सर। ठीक है चलो फिर ये समझो जरा। पहले आप 75 को डिस्प्ले करेंगे 7 टेंस 7 बिट ले लिए और यहाँ से कितना लेंगे? 5 आगे है ना
छोटा छोटा ना है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है ना। 5 5 ले लिया ना। फिर 25 जोड़ना हमें 2 10s 5 1s। तो हम लोग क्या करें, 2 10s को पहले जोड़ेंगे, यस सर। तो 2 10s जोड़ दिए ना। हाँ लेकिन जब भी यहाँ 5 1s को जोड़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ी है ना। यस तो सर। 5 1s होगा तो यहाँ पर 10 बिट की आवश्यकता होगा ना। यस सर। 10 बिट तो नहीं है, नहीं है। तो फिर इसका ग्रुपिंग करेंगे, जहाँ पर 10 मिलेगा उससे बड़ा समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर 10 1s का मतलब क्या हो गया, 0 1 हो गया ना, और 1 10 यहाँ पर हो गया, तो 1 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या 10 हो गया, 9 10, तो फिर यहाँ 10 10 हो गया, Yes, तो sir. फिर यहाँ पर ग्रुपिंग करने की आवश्यकता हो गया। तो 10 10 मीन्स क्या हो गया, 0 10 एंड 100। सुना ना। चलो अब समझ गए। Yes, sir. अब कौन आएगा, कौन आएगा बोलो, कौन आएगा, तुम आएगा हो। चलो चलो दो संख्या कहीं भी जोड़ना है। 10 जहां पर वैल्यू मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं तक होगा। 25 देख जाना। प्लस 40 कितना हुआ, सही है ना। चलो आओ दूसरा, अब दूसरा कोई आओ, कौन आएगा। चलो यहाँ पर मैं जो भी सिखाता हूँ क्लास में अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। 25 प्लस 35 कितना हुआ, 60, बोलो 60। ठीक है। चलो दूसरा कोई आओ, कौन आएगा, कौन आएगा बोलो, तुम ही आओगे बार बार, किसी को भेजो, आओ। चलो जो मैं आपको अबेकस पर यहाँ सिखाया पार्लियामेंट में, इसको क्लासरूम में बैठ के करेंगे तो आप धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ाएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर यही ख्याल रखना है, किसी भी प्लेस पर अगर 9 से बड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलता है तो हमें पुनः समूहीकरण करने की आवश्यकता है ना। आप यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि इससे आपका जो है सो दिमाग जो है, मस्तिष्क आपका केंद्रित नहीं है। मस्तिष्क को केंद्रित करने का प्रयास करो और आप यह कार्य बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ यदि आपको करने का अनुभव हो जाएगा तो एबेकस पर जोड़ घटाओ गुना भाग की क्रिया कैलकुलेटर से भी फास्ट की जा सकती है, कंप्यूटर से भी फास्ट की जा सकती है। तो जिन चीज़ों को मैं पार्लियामेंट में बताता हूँ वो क्लासरूम में जाके प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस एबेकस का यूज करके हम गणित के चारों संक्रियाओं को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चूँकि एबेकस के बारे में कल मैं चर्चा किया, थोड़ी आज चर्चा हुई, हमारे बीच में एक बिल्कुल न्यू टूल्स है, इसका यूज कभी नहीं इस विद्यालय में हुआ है और शायद किसी विद्यालय में यह टूल का यूज नहीं होता है, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि जो इस टूल्स का ऑपरेट करना भी नहीं जानते हैं। खैर आपके विद्यालय में आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा है कि आपके विद्यालय में आपको जानकारी देने वाला शिक्षक है, तो आप जो जानकारी यहाँ से प्राप्त किए इसके आधार पर आप क्लास में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसी बात के साथ आज की सदन समाप्त होती है, फिर अगले सदन में महत्वपूर्ण विषयों को शुरू करेंगे।